Assalamu alaikum. This is our today Saturday's class of Artificial Intelligence 12 to 3. मैसेज मैंने किया है इन्फॉर्म स्टूडेंट्स को कि आ जाएं इस वक्त तक. लेट्स सी. जी अस्सलाम वालेकुम. राजा एहसन और फुरकान नज़ीर आपने ज्वाइन किया है. आवाज़ आ रही है मेरी क्लियरली? काइंडली मुझे कंफर्म कर दें. आई वॉज अवे फॉर अ वाइल. आई हैड बिन वेटिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स. किसी ने ज्वाइन नहीं किया था, अभी ज्वाइन किया है आप लोगों ने, तो बता दें मुझे आवाज़ क्लियरली आ रही है इफ़ यू आर listening to me so that we can start the class formally. Okay, फुरकान नज़ीर का मैसेज आया कि यस आवाज़ आ रही है क्लियरली. So again sorry for that short notice. I just decided कि 12 to 3 we can have a class of artificial intelligence, so I thought why not, because summer semester में as you know कि it moves faster, and any chance that we have to take a class we should take that chance rather than just saying कि हम next week ले लेंगे. So almost 3 hours की class, 4 classes या 3 classes आपकी per week होनी है, and that is still a short time because in the usual semester your labs can go on up to about 3 hours, which is now like shorted for 2 hours or 1 hour. 1 hour for the teacher, and I give you a task to do that. And obviously because we are online, so there is no way to check how much time we can spend in the lab because we are not physically in the lab. वॉइस ड्रॉप हो रही है. ओके लेट मी चेक. मैं ज़रा अपनी माइक की प्लेसमेंट चेक कर लूँ. Alright, my recording was paused for a while. I was just I had not started the lecture per se, but I was telling you, I am again saying कि please get yourself enrolled on MS Teams. किसी भी तरीके से करें. मंडे को हमारा क्विज़ होगा तो उसमें पार्टिसिपेट वही कर सकेंगे. मंडे को क्विज़ या दूसरा असाइनमेंट जो हम देंगे उसमें सिर्फ वही स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकेंगे जो कि MS टीम्स के ऊपर एनरोल्ड हैं. ऑब्वियसली इसके अलावा कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा होगा. सो बिकॉज दिस इज अ समर सेमेस्टर, टाइम गोज बाय वेरी फास्ट. डोंट टेक दिस लाइटली. Get yourself enrolled in MS Teams, contact your admissions department or IT department or whoever the concerned department is. And also CMS के ऊपर भी enroll हो जाए. Let me check कि CMS के ऊपर इस वक्त तक कितने students enrolled हैं, and then we will move forward. Alright, you are still saying that voice is dropping on your side. ठीक है, लेट्स ट्राई टू वेट. लेट मे बी शायद कुछ मिनट्स में सॉल्व हो जाए. इंटरनेट लैग करता है कभी कभी. हो सकता है आपकी तरफ हो या मेरी तरफ हो. देयर इज़ अनदर स्टूडेंट इन द क्लास बट आई एम नॉट गेटिंग एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हिम. आई डोंट नो उनके पास आवाज़ सही जा रही है. अगर ये भी कंफर्म हो जाए तो इट कुड बी deducted that there is no issue on my side. Anyways, let me see who is on CMS and who is not.
Alright, yes, so hopefully screen आपको visible है. And yes, there was something downloading on my network, तो मैंने उसको बंद किया है. Hopefully आवाज़ मेरी शायद अब क्लियर होगी. जो लैगिंग आ रही थी, this was maybe कि वो इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूट हो गया उसमें. So these are the 5 students who are enrolled in CMS 1, 2, 3, 4, 5. I was told maybe there will be 7 to 8 students at least in the class. Probably एक दो स्टूडेंट के शायद इश्यूज चल रहे हों अब भी एनरोलमेंट के. आई होप कि वो बाय द एंड ऑफ दिस वीक बिफोर मंडे सॉल्व हो जाए. ऑल ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर हियर, लेट मी जस्ट कंफर्म कि उनमें से टीम्स पर कितने हैं. ओके, आई हैव 008 ऑन टीम्स. ओके, अली हैदर हैं टीम्स पे. 024 भी हैं मेरे पास टीम पे. 024 is not on CMS. Okay. 092 I have on CMS and 127. So these 3 students which I am selecting now, number 1, number 2 and number 4, Furqan, Malik Bilal and Ali Haider. These are the 3 students who are in my class. Furqan जिस तरह से आप क्लास में भी हैं, I hope you can hear me and you are in my teams. Sorry. Malik Bilal is in the teams, MS teams as well. Ali Haider is in the teams as well. Raja Ahsan जो कि अभी क्लास में अटेंड हैं, वो नहीं है इसमें. I think yeah, 092. No, he is. Okay, there is 2092. One is 17S and the other one is 17F. So I have MS Teams के ऊपर मेरे पास 17S वाला 092 है, which means फुरकान आप हैं. yes, फुरकान है मेरे पास टीम्स पे. राजा एहसन नहीं है. yes, तो राजा एहसन काइंडली अपनी टीम्स को वेरीफाई करवाएं, पासवर्ड सेट करवाएं, वॉट एवर यू नीड टू डू, गेट योर सेल्फ इनरोल्ड इन CMS. और मलिक बिलाल भी हैं मेरे पास, अली हैदर भी हैं, राजा एहसन मैंने आपको कह दिया है, और मोहम्मद आमिर सईद, ही हैज़ बिन टेकिंग द क्लास. यस्टरडे भी इन्होंने क्लासेस दी थी, तो इनको ये अभी तक टीम्स पे नहीं है. सो अकॉर्डिंग टू द CMS ये एटलीस्ट ये 5 स्टूडेंट्स मेरे पास CMS पर होने चाहिए. देयर इज़ अनदर स्टूडेंट ऑन CMS, सॉरी ऑन MS टीम्स, जो कि मुझे नज़र आ रहा है, दैट इज़ CSC 17S024. I don't know what his name is, but this student is not on CMS. So whoever is CSC 17S024, Furqan Nazir. No, this is again got confused about this 024 17S024. yes, 17S024 नहीं है यहाँ पे. So 17S024, CSC 17S024, whoever that person is, you are in my MS teams. प्लीज़ जो कि क्लास में हैं, जो सुन रहे हैं, अगर नोट कर लें और काइंडली वेरीफाई कर लें कि कौन सा स्टूडेंट है ये. प्रॉबेबली आपके सेक्शंस में से ही कोई हो. सो दैट पर्सन इज़ ऑन टीम्स बट ही इज़ स्टिल नॉट इनरोल्ड ऑन CMS. सो टेल हिम टू इनरोल ऑन CMS एज सून एज पॉसिबल. एंड ऑब्वियसली द स्टूडेंट्स विच आई एम टेलिंग यू, जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जो कि CMS पर हैं, उनको भी काइंडली कह दें कि वो MS टीम्स पर जल्द से जल्द इनरोल हो जाएं, सो दैट मंडे या उसके बाद जो हम असाइनमेंट्स लेंगे या क्विज़ेस होंगे उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकें. सो दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ एनरोलमेंट्स इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समर 2021 कोर्स एज ऑफ नाउ. Don't take this lightly, please, because I have said this again and again that summer semester goes by, आपको पता भी नहीं लगेगा. and after this week probably अगर mids होते हैं तो वो I think next week का जो end है, I mean today is Saturday and probably next जो अभी हमारे पास Friday आएगा उसके बाद आपका mid हो जाए. So this might be the last week that is coming if the mid is in the policy. It will be communicated to you obviously from the examinations department, but if that is the case then you will see that it goes by very fast. So don't take this lightly and don't put it on hold कि आप नहीं है तो आराम से आ जाएंगे CMS के ऊपर भी, MS Teams के ऊपर. otherwise you can miss a couple of quizzes, assignments, वो आप मिस कर देंगे और फिर उसको हम रीटेक नहीं कर पाएंगे. ऑब्वियसली रेगुलर सेमेस्टर्स में हमारे पास टाइम होता है कि हम रीटेक कर लें किसी वीक में, बट
रीटेक का भी इस वक्त टाइम नहीं होगा हमारे पास, सो दैट्स वाई गेट दिस एज क्विकली एज पॉसिबल. Okay, so let's start with our lecture. We finished our lecture on rational agents yesterday. रैशनल एजेंट्स वाला जो लेक्चर था वो हमने कल ख़त्म किया है. आज हम एक डिफरेंट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, और दिस लेक्चर दैट वी आर स्टार्टिंग टुडे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. ऑल्दो पिछले लेक्चर्स भी इंपॉर्टेंट थे, बट उसमें से कुछ फीचर्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जो कि हम बार बार यूज़ कर रहे होंगे. द होल सिनेरियो वुड नॉट बी एज एप्लीकेबल इन द अपकमिंग लेक्चर एज दिस स्पेसिफिक लेक्चर. जो हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, दिस लेक्चर विल हैव इट्स लाइक वन बिग लेक्चर, जो कि आज भी हम पढ़ेंगे, अगली क्लास में भी पढ़ेंगे. तो अगले तकरीबन 4-5 लेक्चर स्लाइड्स जो भी हम देखेंगे वो सब बेस कर रही होंगी आज के लेक्चर के ऊपर. सो काइंडली इस लेक्चर को बड़ा गौर से समझना है. कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो बार बार पूछना है. बहुत सी बारीकियाँ इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो कि आगे जाकर मुख्तलिफ अलगोरिदम्स में, मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ अलगोरिदम्स में काम भी आएंगी, और इन्हीं की बेस पे हम उनको पढ़ रहे होंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. ओके, CMS की स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? यस, दिस इज़ इट्स एक्चुअली द चैप्टर 3 ऑफ योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुक. अच्छा, अबाउट द बुक एज वेल, आपको जो बुक मैंने रेफ़र की है दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ मॉडर्न अप्रोच. यूजुअली वही बुक रेफ़र की जाती है. वो बुक मैंने अटैच भी कर दी है आपकी गूगल ड्राइव के ऊपर. सो द बुक वाज अटैच्ड एंड वो आपको एक्सेसिबल थी पहले भी, बट व्हेन आई सॉ दैट तो वो बुक रिमूव हो गई थी, बिकॉज ऑब्वियसली देयर आर कॉपीराइट लॉज फॉर दैट. सो ड्राइव्स के ऊपर, वो शेयरेबल लिंक्स के ऊपर मैं वो बुक नहीं रख पा रहा था. तो आई हैव compressed that file, or you should be seeing a compressed file on your Google Drive, जिसका नाम आई थिंक यही होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ मॉडर्न अप्रोच. आप उसको डाउनलोड करें और उसको देख लें. उसके अंदर मैंने एक बुक रखी हुई है, सो दैट द गूगल डॉक्यूमेंट कुड नॉट पार्स दैट बुक. सो आप उसको देख सकते हैं, और वो बुक भी है. दैट द चैप्टर 3 ऑफ दैट बुक इज़ व्हाट आवर लेक्चर टुडे इज़ बेस्ड ऑन. So let's start with what this lecture is about. It's about actually solving problems. जिस तरह से हमने पहले भी कहा था कि artificial intelligence is what? It's about solving problems. Artificial intelligence or just intelligence is about solving problems. Now, the intelligence part of solving the problem is हाउ यू वुड सॉल्व अ प्रॉब्लम. आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना पड़ेगा व्हाट इज़ एक्चुअली अ प्रॉब्लम, हाउ कैन वी डिफाइन अ प्रॉब्लम. हम एक प्रॉब्लम को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, और कौन कौन से तरीके हैं उसको डिफाइन करने के, और कौन सा सही तरीका है इस प्रॉब्लम को डिफाइन करने का, सो दैट वी कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम इन अ वेरी वेरी अफेक्टिव वे. सो टाइप्स ऑफ एजेंट, दो तरह के एजेंट्स को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, या दो तरह के एजेंट्स होते हैं. हमारी जो सॉल्विंग प्रॉब्लम्स है वो एक इनमें से एक तरह के एजेंट पर होगी, बेस करेगी. दूसरी तरह के एजेंट पे हम उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे जितना हम एक तरह के एजेंट पे हमने ज़्यादा करना है. सो एनीवेज देयर आर 2 टाइप ऑफ एजेंट्स. एक तो रैशनल एजेंट हम देख चुके हैं ऑलरेडी, बट दैट इज़ ऑन अ डिफरेंट एट्रीब्यूट, और ये एक एजेंट है जो कि एक डिफरेंट एट्रीब्यूट पर डिपेंड करता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ intelligence, on the basis of planning, there are 2 types of agents. One is reflex agent and one is planning agent. बड़ा ही सिंपल सा शॉर्ट मैं आपको अगर बताऊं, बिफोर रीडिंग ऑल ऑफ दिस दैट इज रिटन इन दिस स्लाइड. रिफ्लेक्स एजेंट एक ऐसा एजेंट जो बगैर सोचे समझे एक्ट करे, बगैर सोचे समझे एक्ट करे, यानी उसके पीछे लॉजिक ना हो कि किस तरह वो एक्ट कर रहा है, क्यों एक्ट कर रहा है, लेकिन वो कर रहा है. और प्लानिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट है जो कि प्लान करके एक्ट करे, हर एक चीज़ को स्टडी करे, उसके मुख्तलिफ आउटकम्स देखे, मुख्तलिफ आउटकम्स की परफॉर्मेंस मेजर देखे, वगैरह वगैरह, जिसको हम आमतौर पर रैशनल एजेंट कहते हैं. और वो प्लान करके फिर कोई एक्शन परफॉर्म करे. रिफ्लेक्स एजेंट, जो आपको पिंक में लाइन लिखी हुई नज़र आ रही है नीचे, reflex agent consider how the world is.
रिफ्लेक्स एजेंट ये सोचते हैं कि अभी क्या सिचुएशन है, मुझे उसके मुताबिक एक्शन लेना है, जबकि प्लानिंग एजेंट ये सोचते हैं कि जो मुझे एक्शन लेना है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और उससे आपकी इन्वायरमेंट पर क्या असर पड़ेगा, और फिर वो उस चीज़ को प्लान करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। एज अ ह्यूमन वी कैन अंडरस्टैंड दिस कि लेट्स से कि हमें भूख लग रही है, हमारा दिल चाह रहा है कि हम कुछ खाएं। सो व्हाट डू वी इवन ऑर्डर समथिंग, या अगर घर में कुछ है तो हम वो खा लेते हैं। ये हम करते हैं क्योंकि हमें भूख लगती है, तो हमें नीड होती है फूड की, हम खा लेते हैं। कभी कभी हमें क्रेविंग होती है। क्रेविंग का मतलब ये होता है कि हम ये चाहते हैं कि कोई अच्छी चीज़ हो। क्रेविंग होती है कि भाई मीठा खाने का दिल कर रहा है या कोई जंक खाने का दिल कर रहा है, ये हमारा दिल करता है, हम कहते हैं कि यार खाना चाहिए। नाउ ऑन दैट पॉइंट हम क्या करते हैं, लेट्स से कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपका दिल कर रहा है नूडल्स खाने का। नाउ नूडल्स और जो रैमेन होता है, ठीक है, मैगी, कनौर के नूडल्स, ये जो नूडल्स हैं दोज आर यूजुअली नॉट अ वेरी हेल्दी फूड। हमें देखना चाहिए कि अच्छा यार ये हेल्दी नहीं है, इससे नुकसान हो सकता है, इससे पेट की बीमारियां हो सकती हैं या हाजमे में मुश्किलात हो सकती हैं वगैरह वगैरह। लेकिन क्या होता है, हमारा दिल कर रहा है, हमें उस टेस्ट की नीड हो रही है, तो हम कहते हैं कि यार हमें ये चीज़ खानी है। ठीक है, हम ये सोचते नहीं, ये प्लान नहीं करते हैं कि अगर मैं ये करता हूँ तो इससे इन्वायरमेंट पे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे या हमारी हेल्थ के ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। वी जस्ट वॉन्ट इट एंड वी डू इट। तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो वी एक्ट एज अ रिफ्लेक्स एजेंट। वी जस्ट कंसिडर हाउ द वर्ल्ड इज, कि अभी हमें क्या चाहिए। वी डोंट कंसिडर कि हमें एक्चुअली उससे क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। लेकिन अ प्लानिंग एजेंट वर्क्स ऑन हाउ द वर्ल्ड वुड बी आफ्टर योर एक्शन। तो वो ये प्लान करता है प्लानिंग एजेंट कि एक्चुअली आपके एक्शन से एक इन्वायरमेंट पर या आपके नेक्स्ट मूव पर क्या असर पड़ सकता है। रिफ्लेक्स एजेंट चूज एक्शन बेस्ड ऑन करंट परसेप्ट, अभी क्या है उसकी बेस के ऊपर एक्शन लेता है, जबकि प्लानिंग एजेंट डिसीजंस आर बेस्ड ऑन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शन, कि मेरे एक्शन के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो गए, उसकी बेस पर क्या इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, तो मैं वो एक्शन लूँगा जिससे ज़्यादा फ़ायदा हो। बेशक रिफ्लेक्स मेरा ये कह रहा हो, इंस्टिंक्ट मेरा ये कह रहा हो, गट फीलिंग ये कह रही हो कि मुझे ये करना चाहिए, बट मैं उसको प्लान करूँगा और देखूंगा कि अगर उसके नुकसान ज़्यादा हैं तो आई वुड नॉट डू दैट थिंग। So reflex agents do not consider the future consequences of action while planning agents do. Planning agents must have a model of how the world evolves in a response of actions. अब planning agent को कैसे पता लगेगा कि एक certain action से क्या नुकसान या फ़ायदा हो सकता है, तो उसके बाद एक मॉडल होना चाहिए जिसको हम आम लफ्ज़ों में ट्रांजिशन मॉडल कहते हैं, जो कि हमने पिछली क्लासेस में भी देखा। ट्रांजिशन मॉडल क्या, कि भाई एक सर्टेन एक्शन के बाद इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ेगा, मैं किस स्टेट में आ जाऊँगा, तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि एक सर्टेन एक्शन के बाद मुझ पे क्या असर पड़ेगा या मेरे इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ेगा, सो दैट आई कैन बेटर अंडरस्टैंड कि मेरे लिए कौन सा एक्शन फ़ायदेमंद है और कौन सा एक्शन नुकसानदेह है। जबकि रिफ्लेक्स एजेंट ये नहीं सोचता। रिफ्लेक्स एजेंट बस ये सोचता है कि अभी मुझे क्या चीज़ चाहिए, अभी मुझे क्या चीज़ सही लग रही है, मैं वो कर दूंगा, चाहे उसके नुकसान आगे जाकर ज़्यादा हो, चाहे उसके फ़ायदे आगे जाकर ज़्यादा। ठीक है, सो प्लानिंग एजेंट मस्ट फॉर्मुलेट अ गोल। प्लानिंग एजेंट कितना आगे तक का सोचेगा, उसके पास कोई गोल होना चाहिए कि अच्छा मैं क्या हेल्थ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन वही एग्जांपल मैं देता हूँ, क्या हेल्थ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या अभी जो मेरी क्रेविंग है, जो मेरी नीड है, जो वांट है मेरी, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सो देयर मस्ट बी अ गोल कि अल्टीमेट गोल क्या है मेरा, और उस गोल की बेस पर मैं डिसाइड करूँ कि एक्चुअली व्हाट डू आई वांट टू डू एंड what actions should I perform in order to be in order to make the most out of the performance measure. Right, so what do you think, what kind of agents we will be thinking to make intelligent? Would we be interested in to understand how reflex agents work, or would we be interested in on how a planning agent works? अभी तक जो बात आपको समझ में आई उसके मुताबिक आपको क्या लगता है कि हम कौन से एजेंट को ज़्यादा प्रेफर करके उसको स्टडी करना चाह रहे हैं? सो ऑन क्विकली अगर मैं थोड़ा सा रिकैप करवा दूँ तो रिफ्लेक्स एजेंट एक वो एजेंट है जो कि सिर्फ ये देखता है कि अभी एक एनवायरनमेंट में क्या है और मुझे क्या सही लग रहा है, मैं वो काम करूँ। जबकि प्लानिंग एजेंट प्लान करता है कि मेरे उसके
एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, फ़ायदे नुकसान क्या होंगे, और उसकी बेस पर वो कोई एक्शन परफॉर्म करता है. So, can you guess what kind of agent we will be studying more in our upcoming lectures, in this lecture, in the whole course of artificial intelligence? So, any guesses would be helpful. All right. Furqan Nazir is saying I think planning agent because we want to examine the criteria and also the consequences rather than just work done. So yes, you're right. We will be focusing on planning agent because इससे पहले भी हमने इस पर थोड़ी बहुत बात की है कि there is an agent known as rational agent which thinks of the goals, outcomes क्या क्या हो सकते हैं, फ़ायदेमंद outcomes क्या क्या हो सकते हैं, वगैरह वगैरह. So yes, it's a very good guess कि we will be working on the planning agent कि how does an agent think, how does an agent work, कॉन्सिक्वेंसेस किस तरह से वो कैलकुलेट करता है, फ़ायदे को किस तरह से एक्वायर करता है, नुकसान को किस तरह से रजिस्टर करता है, एंड सो ऑन. एंड वी विल बी थिंकिंग कि व्हाट इज़ द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो फॉर अ पर्टिकुलर एक्शन, and we will be planning. So the kind of agent that we want to develop in artificial intelligence is again very correctly the planning agent. So let's move forward. Search. When there is a problem, फर्स्ट क्लास से ही हमने ये बात शुरू की थी और यही हमने ये सीखा था. 10 मिनट के बाद मीटिंग एंड हो जाएगी, उसके बाद रीज्वाइन कर लीजिएगा. कि if you have a problem, you will try to solve that problem. If you are given a problem, you will try to solve that problem. And how will you solve a problem? In order to solve a problem, you must take certain steps, जिसको हम usually कहते हैं algorithm. कि कुछ certain steps मैं take करूँगा in order to move towards the solution from the problem. कि मैं ये करूँ, फिर ये करूँ, फिर ये करूँ, फिर बार बार ये करूँ, फिर 10 दफ़ा ये करूँ, फिर 20 दफ़ा वो करूँ, then I will be on a solution. Otherwise, I will still be on the problem. So let's consider any problem. किसी भी problem को हम इस तरह से देख सकते हैं कि like this maze, जो maze आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो कि अगर आप कर्सर को फॉलो करें तो you can see that. So any problem, this is the start state, जिसको हम कह लेते हैं कि this is the problem state. यहाँ पर हमें प्रॉब्लम अकर होती है, हम देखते हैं कि अच्छा दिस इज़ एक्चुअली अ प्रॉब्लम एंड आई वांट टू सॉल्व इट, और हमें उसका सोल्यूशन भी मिल जाता है कि अच्छा इसका सोल्यूशन ये है कि दैट आई वांट टू डू दिस, which we call the goal state. It means that I want to move from this start state or the problem state towards the goal state or the solution state. But in order to move from start state to goal state, in order to move from the problem towards the solution, I would have to take some steps. I will have to move towards here or here or here or whatever the path I may take, and then I should arrive at the goal state. This is actually what searching for a problem does. किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो हम यही काम करते हैं. प्रॉब्लम की टाइप्स भी मुख्तलिफ देखेंगे हम, बट कोई भी प्रॉब्लम हो जनरल आइडिया यही है. इफ़ आई हैव अ प्रॉब्लम, अगर मुझे लग रहा है कि आई हैव टू से सी के अंदर मुझे प्रोग्रामिंग करनी है. नो, आई डोंट हैव द इन्वायरमेंट फॉर सी. मेरे पास IDE नहीं है, द डेवलपमेंट इन्वायरमेंट नहीं है मेरे पास. So what would I do? I would say कि okay, my problem is that I don't have a compiler for C on my computer, and the solution is that I need to have a compiler on my computer of C. That is the problem and that is the solution. So what would I need to do? I would need to move towards from this state to the goal state, which means that I will have to acquire some software. मुझे पहले decide करना पड़ेगा कौन सा compiler best है. Then I will have to download that or purchase that. Then I will have to install that on my computer, and then I will be, these 3-4 steps I must have to take in order to move from not having the compiler of C on my computer to having the compiler of C on the computer, which means from problem state to solution state or from start state to goal state. Now there are multiple types of problems
आपने भी देखी होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आप एल्गोरिदम्स भी पढ़ के आए हुए हैं, आपने ऑटोमेटा भी पढ़ा होगा, एंड यू नो कि देयर आर सम पॉलिनोमियल प्रॉब्लम्स, सम एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स, सम simple problems, some linear problems, some not so linear problems, and so on. So this kind of problems, so these kinds of problems, sorry, so there are multiple types of problems, but we will be focusing on some specific types of problems. We don't have you can say time, or we don't have the domain to study all of the problems, because artificial intelligence is a very huge field. There are multiple different subjects to study that, but in this introductory course of artificial intelligence kind of, we will be only focusing on the problems of डिज़ाइनिंग द गोल बेस्ड एजेंट्स. ऐसे एजेंट्स को हम डिज़ाइन करना चाहेंगे जो कि प्लानिंग एजेंट हों ऑब्वियसली, जो कि रैशनल एजेंट्स हों प्रॉबेबली ऑब्वियसली, बट दे आर गोल बेस्ड एजेंट्स. गोल बेस्ड एजेंट्स का मतलब यही है कि एन एजेंट विच नोज कि उसका गोल क्या है और उसे उस गोल तक पहुंचना है. इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग की ज़बान में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ उसका. इट्स नॉन एज सुपरवाइज्ड लर्निंग, दैट आई नो व्हाट इज़ एक्चुअली माय गोल, एंड आई जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे एक अपनी स्टार्ट स्टेट से उस गोल तक कैसे पहुँचना है. बट देर आर अदर प्रॉब्लम्स एज वेल जिसका सोल्यूशन भी हमें नहीं पता होता, और हम मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई करते करते एक सोल्यूशन पर पहुँचते हैं, हमें नहीं पता होता कि कौन सा सोल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ अ प्रॉब्लम दैट यू वॉन्ट टू गो फ्रॉम कराची टू हैदराबाद. नाउ यू नो कि कौन सा पाथ आपको लेना है. आपको सिर्फ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको एग्जीक्यूट करना है. और फॉर एग्जांपल इफ़ आई से आपको कराची से लेट से किसी ऐसे शहर जाना है जहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं है, जहाँ पे आपने रास्ता नहीं देखा हुआ, जो वाइडली नोन नहीं है. सो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यार अच्छा वो कहाँ पर है, और फिर आप एक रास्ता लेंगे, आपको पता लगेगा नहीं ये गलत है, फिर दूसरे रास्ते पे आएंगे. यू डोंट नो द गोल स्टेट कि आप कहाँ जा रहे हैं. So we will be only be considering the kinds of problems जो कि goal based problems हैं, जिसमें गोल का आपको पता होता है कि क्या है. इट्स जस्ट अबाउट कि आप उस गोल तक कैसे पहुंचते हैं. अब हमने बहुत सारे इन्वायरमेंट की टाइप्स भी पढ़ी. आपने देखा होगा कि उसमें बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंट्स थे जो कि मुख्तलिफ तरीके के होते हैं. तो हम जिस इन्वायरमेंट पर काम करेंगे दैट विल बी द मोस्ट कंक्रीट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, यानी फुल्ली ऑब्जर्वेबल होगा. हम कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं रखेंगे. कुछ प्रॉब्लम्स आल तो हम डिस्कस करेंगे, बट मेन फोकस हमारा होगा डिटर्मिनिस्टिक के ऊपर. स्टोकेस्टिक की भी कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, बट नॉट इन दिस चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम देखेंगे जब हम गेम के ऊपर आएंगे. डिस्क्रीट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी कि हम वैल्यूज़ को डिस्क्रीट रखेंगे, नॉट कॉन्टिन्यूस. एंड नॉन इन्वायरमेंट्स, विच मीन्स कि देयर इज़ नो, जिसको कह लें कोई ट्विस्ट या कोई ट्रिकी चीज़ हमारे सामने नहीं होगी. हम एग्जैक्ट सही से फुली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट को, डिटर्मिनिस्टिक को, स्टैटिक इन्वायरमेंट को रखेंगे और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. बिकॉज इफ़ वी अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन दीज टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, then obviously it will be very helpful for us when we go towards more complicated types of environment like stochastic or continuous or unknown environments. Right, so this is the basic idea of searching. So what does our agent need to do? The agent must find a sequence of actions that reaches the goal. What do we want? What do we say to it? Can you tell me what this sentence is saying in one word? एक लफ्ज़ में क्या आप बता सकते हैं कि ये सेंटेंस क्या कह रहा है? एजेंट को क्या चाहिए एक्चुअली? Okay, good, Furqan. Steps. What about others? Amir, Bilal, what do you think? Can you simplify it in one word? It's a very common word. It's right in the sentence. Furqan Nazir is very close, but it's not the exact word that I was looking for. एजेंट को क्या चाहिए एक्चुअली? एजेंट के पास चलें, ये भी पता है वो है कहाँ, स्टार्ट स्टेट पता है, गोल स्टेट पता है. व्हाट डज इट वांट? Yes, exactly. This is the exact word that I was looking for. Furqan, you are saying something like, you are not still sure, but you have written that word, algorithm. You are looking for, the agent is looking for the algorithm, right? And Bilal is saying that agent wants to think.
So it must find a sequence of steps, sequence of actions. And what do we know the sequence of action as? We know the sequence of actions as an algorithm. So what do we want to do? The we want the agent to find out an algorithm so that it can move from start state to goal state, right? We want, हम अपने एजेंट को इस काबिल बनाना चाह रहे हैं कि इट शुड मूव, इट शुड फाइंड एन एल्गोरिदम, इट शुड फाइंड अ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस. फर्स्ट के एक्शन लेना पड़ेगा, फिर के एक्शन लेना पड़ेगा, एंड सो ऑन, सो दैट इट कैन मूव फ्रॉम इट्स प्रॉब्लम स्टेट टू इट्स सोल्यूशन स्टेट, या स्टार्ट स्टेट टू इट्स गोल स्टेट. परफॉर्मेंस मेजर की हम पहले भी बात कर चुके हैं. द परफॉर्मेंस मेजर इज डिफाइंड बाय टू थिंग्स. The performance measure is defined by two things, although we have defined it in various ways in our previous lecture. But in here, in the planning search, we are going to define performance measure on the basis of two things. Number one, reaching the goal. परफॉर्मेंस मेजर का मतलब ये है कि परफॉर्मेंस मेजर मैं कहूँगा अचीव हो गया है, एक अच्छा परफॉर्मेंस मेजर है मेरे पास अगर मेरा एल्गोरिदम मुझे गोल पर पहुंचा देता है तो. और दूसरी चीज़ ये कि गोल पर तो बेशक पहुंचा दे, लेकिन कितना कॉस्टली मुझे पड़ा है उस गोल तक पहुंचना. बिकॉज एज यू नो देयर कैन बी मल्टीपल पाथ्स टू द गोल. देयर कैन बी पाथ ए, पाथ 2, पाथ 3 एंड सो ऑन. सो मेरे एल्गोरिथम ने मुझे कौन सा पाथ ढूंढ कर दिया है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर आवर अपकमिंग algorithms that we will be discussing in our upcoming classes. Very important thing. परफॉर्मेंस मेजर क्या है? सबसे पहली चीज़, क्या वो एल्गोरिदम मुझे गोल तक पहुंचा रहा है? ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर बीच में खुद जो है वो या तो गुम हो जाए या उसको पता ना लगे कि क्या क्या चीज़ ढूंढ रहा था मैं. ओके, द मीटिंग इज एंडेड. आई हैव टू रीस्टार्ट द मीटिंग. वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स. ऑलराइट, सो या वी आर बैक. सो लाइक आई सेड कि दो चीज़ों के ऊपर हमने फोकस करना होगा इन द तमाम एल्गोरिदम्स के ऊपर. एक ये कि वो एल्गोरिदम हमें गोल तक पहुंचा रहा है या नहीं, और दूसरा ये कि वो कितना कॉस्टली हमें गोल तक पहुंचा रहा है. बिकॉज देयर कैन बी मल्टीपल पाथ्स टू द गोल, बट वो एल्गोरिदम कौन सा पाथ ढूंढ कर दे रहा है हमें, दैट इज़ द क्वेश्चन. सो परफॉर्मेंस मेजर हम इन दो चीज़ों के ऊपर बेस करके डिफाइन करेंगे. हम कैसे कहेंगे कि एक एल्गोरिदम इंटेलिजेंट है या नहीं, इन दो चीज़ों के ऊपर हम बेस करेंगे. लेट्स से कि मेरे पास दो एल्गोरिदम्स हैं एंड देयर आर tens of paths from start state to goal state. दो एल्गोरिदम्स हैं. एक एल्गोरिदम ऐसा है, दोनों एल्गोरिदम मुझे गोल तक पहुंचा देते हैं. एक एल्गोरिदम यानी एक सीक्वेंस ऑफ एक्शन जो है वो से कॉस्ट 10 लेता है मुझसे, 10 किलोमीटर कह लें या वट एवर, 10 यूनिट्स की कॉस्ट है, और दूसरा एल्गोरिदम मुझे 5 यूनिट्स में वो काम करके दे देता है. तो ऑब्वियसली आई विल प्रेफर द एल्गोरिदम जो कि मुझे 5 यूनिट्स में अपने गोल तक पहुंचा रहा है, रादर देन स्पेंडिंग 10 यूनिट्स on the goal or on the path, right? So the expensiveness, the expense of cost on a path is very important when I come towards artificial intelligence. So we are focused on the process of finding the solution. While executing the solution, we assume that the agent can safely ignore its percepts, open loop systems. ये एक और चीज़ हम इग्नोर करेंगे. सी हम यहाँ पर जितने भी एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपको लगेगा कि यार ये तो टेकन फॉर ग्रांटेड है, ऐसा हमेशा तो नहीं होता, लेकिन हम उन चीज़ों को इग्नोर करेंगे. तो हम यहाँ पर भी जिस तरह सोल्यूशन हम करेंगे, इसकी एग्जांपल जब आगे आएगी तो मैं आपको देता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पर आपको लगेगा कि यार यहाँ पर तो एल्गोरिदम एक लूप, इनफाइनाइट लूप में फंस सकता है, तो हम उस चीज़ को इग्नोर करेंगे कि नहीं, ओपन लूप सिस्टम अगर है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे कि ये दोबारा यहाँ पर ऐसा काम नहीं करेगा. वो चीज़ें आपको होपफुली आगे चल के समझ में आ जाएंगी. मूविंग फॉरवर्ड, सो किसी भी सर्च प्रॉब्लम्स के ये कंपोनेंट्स होते हैं. आई विल गिव यू अ फ्यू मिनट्स, 1 से 2 मिनट लें, इसको खुद समझ लें, और फिर मैं इसके ऊपर आता हूँ कि एक्चुअली ये चीज़ें क्या हैं. क्योंकि मैं अगर बोल दूंगा तो मेरी एक एक चीज़ आपको समझ में तो आ जाएगी लेकिन याद नहीं रहेगी. सो आप समझें, ये एक 5 चीज़ें हैं जो कि पिंक में लिखी हुई हैं ना, ये 5 चीज़ें हैं, और ख़ुद समझ लें कि इन 5 चीज़ों का मतलब क्या है. टेक 1 minute and then tell me and then I will explain it to you and then we can debate कि क्या आपने भी ये चीज़ समझी थी या आपने कुछ दूसरी चीज़ समझी थी इससे.
राइट, सो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये चीज़ें क्या हैं। ये करने का मकसद ये है कि मैंने आपको पहले कहा है कि आप ये खुद समझें, सो दैट, क्योंकि ये बात सिर्फ मैं आपको अभी समझा रहा हूँ 5 मिनट में, इसके बाद हमेशा ये आपने खुद समझनी होगी कि क्या है। अब मैं आपको समझाता हूँ और लेट्स सी कि आपको ये बात समझ में आई सही से या नहीं, और अगर आपको कोई चीज़ डिफरेंट समझ में आई तो इसका मतलब है अगर आपको मैं आज समझाऊंगा तो आज समझ आ जाएगी, लेकिन 2 दिन बाद अगर आप खुद ये पढ़ेंगे तो आप फिर अपनी ही डेफिनेशन को याद कर रहे होंगे। सो अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट जिसको हम आज से पहले स्टार्ट स्टेट कह रहे थे या प्रॉब्लम स्टेट कह रहे थे, उसको हम इनिशियल स्टेट भी कह सकते हैं कि यू आर ऑन द प्रॉब्लम स्टेट। ये वो स्टेट है जहाँ पर आप इस वक्त हैं और यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम अकर होती है, दैट इज़ एन इनिशियल स्टेट। एक्शंस क्या हैं, जिस तरह से हमने रैशनल एजेंट के लेक्चर में भी पढ़ा, एक्शंस आर दोज एक्शंस दैट यू विल टेक इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। इनिशियल स्टेट, अगर यहाँ से अगर आप कर्सर को फॉलो करें, अगर आप इस स्टेट पे थे तो लेट्स से आपको ये पाथ लेना है, आप यहाँ से आके और फिर गोल स्टेट तक जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मूव, एक एक्शन करना पड़ेगा ना, मूव। एंड देन हो सकता है यहाँ से आपको टर्न करना पड़े, ये भी एक एक्शन है, टर्न, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, मूव फॉरवर्ड, टर्न बैक वगैरह वगैरह, ये सारे एक्शंस हैं। एक है ट्रांजिशन मॉडल। ट्रांजिशन मॉडल जिस तरह से ऑटोमेटा में भी आप पढ़ के आए, ट्रांजिशन मॉडल का मतलब ये है कि आपको पता हो कि एक सर्टेन स्टेट पर रहते हुए अगर आप कोई सर्टेन एक्शन परफॉर्म करते हैं तो आप कहाँ चले जाएंगे, दैट इज़ नोन एज अ ट्रांजिशन मॉडल। जिस तरह एक सिंपल सा एक ट्रांजिशन मॉडल मैं आपको देता हूँ, वो ये है कि अगर आपके सामने एक खाली पेज है और आपके हाथ में एक पेन है। अब ये जो पेन है ये इनिशियल स्टेट है और खाली पेज एक इनिशियल स्टेट है। अब अगर मैं आपको कहता हूं कि इफ़ यू राइट ए ऑन द पेपर, आपने पेपर के ऊपर ए लिखा, ये आपने एक एक्शन परफॉर्म किया। और ट्रांजिशन मॉडल क्या है, ट्रांजिशन मॉडल वो रूल्स हैं जो कि आपको एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर लेकर आते हैं, जो कि आपको एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक लेकर आते हैं। कैसे आए आप एक स्टेट से, पहले आपकी स्टेट ये थी कि द पेपर वॉज एम्प्टी, आपने एक एक्शन परफॉर्म किया ए, तो अब आप किस स्टेट पर आ गए, अब आप एक ऐसी स्टेट पर आ गए जहां पर पेपर पे ए लिखा हुआ है। अब आप एक और एक्शन परफॉर्म करते हैं, लेट्स से आपका एक्शन है राइटिंग बी ऑन द पेपर, तो जब आप पेपर पर बी लिख देंगे तो अब आप कौन सी स्टेट पर आ जाएंगे, अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, कि अब आप किस स्टेट पर आ जाएंगे, आपने एक्शन परफॉर्म किया, आपने लिखा बी पेपर के ऊपर, अब आप किस स्टेट पर आ जाएंगे, अब आप एक ऐसी स्टेट पर आ जाएंगे जिसमें पेपर के ऊपर ए बी लिखा हुआ है, बिकॉज यू वर ऑन द ए लोकेशन एट फर्स्ट। अब आप सी लिखते हैं तो अब आप पहले किस सिचुएशन में थे, पहले किस स्टेट पर थे, आप पहले इस स्टेट पर थे कि पेपर पे ए बी लिखा हुआ था। अब आप इस स्टेट पर आ गए हैं इस एक्शन परफॉर्म करने के बाद कि ए बी सी लिखा हुआ है। अब देखें ये रूल्स पहले से डिफाइंड होते हैं, जिसको हम ट्रांजिशन मॉडल कहते हैं। आप ऐसा तो कभी नहीं कहेंगे ना कि यार मैं एक्शन परफॉर्म करूंगा कि मैं पेपर पे लिखूंगा सी, लेकिन उसके बाद जो स्टेट आएगी मेरी उसमें पेपर पे लिखा हुआ होगा एफ। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये एक रूल है, ये रूल लिखा हुआ है कि आप अगर सी लिखेंगे तो आप सी लिखी हुई ही पोजीशन पर आएंगे। ये नहीं है कि आप लिखेंगे सी और आप पोजीशन इस पर आ जाएंगे कि आपके पेपर पर एफ लिखा हुआ हो। आप लिखेंगे डी और आपकी पोजीशन ये हो जाएगी कि आप पेपर पर पी लिखा हुआ है। So this is known as a transition model, that you know कि after performing one action you will have to move to a certain other state. आप किसी दूसरी स्टेट पर नहीं जा सकते, आप A लिखने के बाद B पर नहीं जा सकते, आप A पर ही आएंगे, आप B लिखने के बाद B पर नहीं जा सकते, C पर नहीं जा सकते, आप B पर ही आएंगे। This is known as a transition model. What state results from performing a given action in a given state? एक स्टेट पर रहते हुए एक एक्शन परफॉर्म करके आप किस स्टेट पर जाते हैं। And the next thing, I'm reading out the second last thing written in this pink color, goal state. Goal state, as we know कि it is our solution state, हमें उस तक पहुंचना है। And path cost is a thing जो कि हम मुख्तलिफ paths को लेते हुए कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि अगर आप इस माउस कर्सर को देखें तो लेट्स से कि ये एक पाथ है जिससे आप गोल स्टेट पर पहुंच जाते हैं, जो कि माउस कर्सर अगर आप फॉलो करें तो ऐसे है। ऑल्दो इट्स नॉट अ पाथ बट लेट्स कंसीडर दिस इज अ पाथ। सो अगर आपने ये ले लिया लेट्स से कि आप गोल स्टेट, लेकिन हो सकता है कि एक और पाथ भी एग्जिस्ट करता हो सकता है यहाँ पर जो पाथ एग्जिस्ट कर रहा है उसमें आपको बहुत सारे टर्न्स लेने पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मूव करना पड़ रहा है। यू आर टेकिंग लेट्स से 12 टर्न्स और यहाँ पर आप सिर्फ 6 टर्न्स ले रहे हैं,
तो इट्स पॉसिबल कि आप ये कहें कि दिस पाथ इज द कॉस्ट ऑफ दिस पाथ इज लेसर देन द कॉस्ट ऑफ दैट पाथ. So assume that it is a sum of non-negative step costs. इट डिपेंड्स ऑन द एल्गोरिदम कि आप किस तरह कॉस्ट्स को जो है वो डिफाइन करते हैं. हो सकता है कि किसी एल्गोरिदम में आपको टर्न की कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही हो, किसी एल्गोरिदम में आपको मूवमेंट की कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही हो, किसी एल्गोरिदम में आपको प्लस करने की कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही हो, किसी एल्गोरिदम में आपको लूप लगाने की कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही हो, एंड सो ऑन. आपको बस उसको कुछ वैल्यूज असाइन करनी है सो दैट यू नो कि व्हाट इज़ द एक्चुअल पाथ कॉस्ट ऑफ वन एल्गोरिदम and what is the actual path cost of the second path or algorithm. So it is the sum of non-negative step costs. And what would be the optimal solution? The optimal solution, there can be multiple paths from initial state to goal state. The optimal solution would be the solution which gives us the goal state, which takes us to the goal states in the least amount of path cost. Lowest path cost possible जो है उससे हमें गोल पर ले जाए तो दैट वुड बी नोन एज द ऑप्टिमल सोल्यूशन. अगर उससे भी, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि आगे जाकर मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स में हमने ऑप्टिमल सोल्यूशन की बेस पर ही एल्गोरिदम को भांपना है कि वो कैसा एल्गोरिदम है. सो ऑप्टिमल सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जो कि सबसे कम कॉस्ट में हमें गोल तक ले जाए, सबसे कम कॉस्ट में हमें गोल तक ले जाए. अगर आपको पता है कि एल्गोरिदम हमें लेट से 12 की कॉस्ट में एल्गोरिदम गोल तक ले गया है, लेकिन 11 वाला पाथ भी एग्जिस्ट करता है या 10 वाला पाथ भी एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये है कि उस एल्गोरिदम ने हमें ऑप्टिमल पाथ नहीं दिया, ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं दिया. ऑप्टिमल सोल्यूशन तब होता जब अगर 10 वाला पाथ एग्जिस्ट कर रहा है तो वो हमें 12 वाला ना देता, बल्कि 10 वाला पाथ ही कैलकुलेट करके देता, सो दैट बाय पेइंग द लोवेस्ट अमाउंट ऑफ कॉस्ट आई कैन गो टुवर्ड्स द गोल स्टेट. अंडरस्टूड. अब आपने जो चीज़ें समझी थी उनमें क्या चीज़ें कन्फ्लिक्ट कर रही हैं आपको, जो आपको समझ नहीं आई कि सर हम ये समझ रहे थे कि इनिशियल स्टेट या ट्रांजिशन मॉडल का मतलब ये है, बट आपने इसका मतलब ये बताया है. सो इज़ देयर एनी कन्फ्यूजन और इज़ इट ऑल राइट? So all is well. Okay. What about others? Amir, Bilal, is everything clear as of now? अभी तक हमने इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं की है, अभी हमने सिर्फ डेफिनेशंस और कुछ टर्म्स को जो है वो समझने की कोशिश की है. होपफुली इट्स क्लियर. एंड ये वो टर्म्स हैं जो कि हम आगे जाकर मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स में बार बार यूज़ कर रहे होंगे, तो हर दफ़ा आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा थोड़ा रिकैप इसका करवा दूँ कि हम क्या बात कर रहे हैं एक्चुअली, सो दैट आपको चीज़ें याद भी रहें और समझ में भी आ जाएँ. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. This is the problem that will not leave our side for a couple of lectures at least. The problem is, this is the actual problem जो कि दी गई है आपकी, जो मैंने बुक रेफ़र की है उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम गिवन है, तो हम इसी को स्टडी करेंगे. ज़्यादातर यही प्रॉब्लम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिगिनर्स को इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दी algorithms and different type of intelligence पढ़ाई जाती है. So you are on a vacation to Romania. Romania is a country in which there are multiple cities, and obviously, like in any country, you can go from one city to another by paying a cost. So you move from one state, one city to another. This is the map of that situation. Excuse me a minute. So look at this map while I take a minute. Look at this map and then we will continue.
Yeah, so what is the situation? The situation is that you are in a city known as Arad, A-R-A-D, and you have to go from Arad. This is the initial state, this one, if you look closely. Yeah, let me just zoom in and understand this, if it allows me to zoom in. Let's see, why is it not zooming in? जूम नहीं कर सकते क्या फुल स्क्रीन में? एनीवेज चलें, मे बी मैं इसको इस तरह से जूम कर सकूं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन. दिस इज द लूप, द मैप. सो व्हाट डू वी वांट टू डू? वी वांट टू मूव फ्रॉम दिस स्टेट एरिड. कर्सर नज़र आ रहा है आपको? फॉलो कर पा रहे हैं? या आपकी स्क्रीन में हो सकता है छोटा हो गया हो या नज़र ही ना आ रहा हो. Can you see? Can you follow the cursor while I'm talking? Okay, so this is the state arid. Because we don't have the whiteboard पे लिख कर समझाने में ये काफ़ी आसान रहता है. बेशक कितनी ही चीज़ें मिमिक कर लें हम कंप्यूटर्स में, ऑब्वियसली टच स्क्रीन के थ्रू मैं राइट कर सकता हूँ, बट दैट इज़ नॉट एज फीजिबल. उससे स्क्रीन ख़राब ज़्यादा हो जाती है, और आपको जो चीज़ एक्चुअली लिखी हुई है स्क्रीन पर वो भी सही से समझ नहीं आएगी. सो जस्ट अंडरस्टैंड एंड लिसन टू माई वर्ड्स. Arid is the start state. You are in this city as of now, and you want to move. This is the start state, and you want to go to Bucharest or Bucharest. So Arid से Bucharest आना है आपने, and there are multiple paths that you can take in order to move from initial state to goal state, or from Arid to Bucharest. Arid से Bucharest आपने आना है. So this is your start state, this is your goal state, and there are path costs given from each node to another node. For example, आप टिमिसवारा से LUGOJ, let's say Lugoj पे आते हैं, तो you will have to pay 111 units. Now this is a very random cost. इसको random कह लें आप, या एक ऐसी cost कह लें. Obviously आप ये नहीं कह सकते 111 रुपए लगेंगे या 111 किलोमीटर है. It's just the path cost, कि इतनी path cost है इसकी. ऑब्वियसली अगर आप सारी चीज़ों को देखने जाएं तो फिर हम उसी प्रॉब्लम पर आ जाएंगे जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में देखी, कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को लिखना बड़ा मुश्किल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में. तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो उस अगर रियल वर्ल्ड के ऊपर हम चले जाएं तो देयर आर मैनी अनसर्टेन सिचुएशंस, इसके ऊपर हम हमेशा बात नहीं कर पाएंगे. सो लेट्स जस्ट से दैट फ्रॉम एरिड टू टिमिसवारा देयर इज 118 यूनिट्स ऑफ कॉस्ट. नाउ this is the initial state, this is the final state, these are the costs of state from one state to another. 118 is from this to this, 140 is from this to this, and so on. What is the transition model here? What is the transition function here? The transition model is that if you move from arid to CBU, if you move from arid to CBU, your state will change from arid to CBU. इसको ज़रा गौर से समझ लें. ये बात क्या है? बड़ी ट्रिवियल सी बात है, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. द ट्रांजिशन मॉडल क्या कह रहा था? जिस तरह मैंने ABC वाली एग्जांपल आपको दी, कि आप पहले खाली पेज से उठ के अब ऐसे पेज पर आ जाएंगे जिस पर A लिखा हुआ है, बिकॉज यू रोट A ऑन अ पेज. सो अगर आप एरिड से मूव होकर CBU की तरफ आते हैं तो नाउ योर करंट स्टेट विल बी CBU. अब आप एरिड की स्टेट से उठ के CBU की तरफ आ गए हैं. अगर आपने क्या एक्शन परफॉर्म किया? आप एरिड से चल के अगर CBU तक आ गए तो इसका मतलब है नाउ यू आर इन CBU. If you move from city A to city B, then you are in city B. Exactly, Furqan. It's like overwriting the new value on the old value. That you are on the first state or whatever that state is. If you performed an action, that means that you left that state and now you are on the newer state. आपने एक्शन ये परफॉर्म किया कि आप एरिड से जेरेंड की तरफ चले गए, तो इसका मतलब है नाउ योर करंट स्टेट विल बी ओवररिटन टुवर्ड्स Zarend and will be overwritten from arid. ठीक है. So this is the transition function. Cost भी आपके सामने दी गई है, and this is the whole state space. State space का मतलब यही है कि this is the whole definition of your problem. What is your initial state? This is arid. What is your action? You can go from one city to another. These are the actions that you can take.
What is the transition model? The transition model is that if you go from city A to city B, you will end up in city B. What is the goal state? It's Bucharest. What is the path cost? It is the sum of edges cost, total distance traveled. So path cost is, let's say कि arid से Zarin की cost है 75. Again it's a very trivial thing, बहुत simple सी चीज़ है, but we have to say it कि अगर आप let's say arid से what's that city ओरेडिया तक जाते हैं, तो आपको कितनी कॉस्ट लगेगी? सिंपल सा क्वेश्चन है, आप मुझे बता दें। अगर आप एरिड से ओराडिया तक जाते हैं तो आपको कितनी कॉस्ट लगेगी? ठीक है, लाइक फुरकान इज सेइंग कि बाकी स्टूडेंट भी अगर पार्टिसिपेट करें तो इट विल बी हेल्पफुल आगे जाकर। अभी क्योंकि इसी चीज़ में जो इन्होंने जवाब दिया, इट सीम्स राइट बट इट्स एक्चुअली नॉट एग्जैक्टली राइट। जिस तरह फुरकान ने कहा कि 75 प्लस 71, यू इफ यू वांट टू गो फ्रॉम एरिड टू ओरेडिया, you have to move from Arid to Zarin first by paying the cost of 75, and then you will have to move from Zarin to Oradea by paying the cost of 71, and the total cost from Arid to Oradea would be the sum of all the edges cost, which is 75 plus 71, and his answer is 146. Right, this is the answer of Furqan. But what about if I say that I can move towards from Arid to Oradea by paying another cost as well? I can go from Arid to Sibiu and from Sibiu to Oradea, and that way I can go from Arid to Oradea as well. What do you think about that? Is that a path as well or not? Alright, so yes, 140 plus 151 would be, say, how much would it be? 291, I think. I'm not saying that that is a good path, but it's actually another path as well. सो एनीवेज वी मूव, हम थोड़ा ज़्यादा आगे निकल गए इस बहस में, बट पाथ कॉस्ट की हम बात कर रहे थे। पाथ कॉस्ट वुड बी द सम ऑफ ऑल द एजेस दैट कम्स in between from one state to another state, that will be the path cost from one state to another. So this is how you will define this state space. State space का मतलब यही है कि the space in which there are states, the all of the space in which there are states, this will be known as state space. जैसे खैर यहाँ पर आ रही है बात। अच्छा, यहाँ पर एक और बात भी आपको मैं बता दूँ कि स्पेसिफिकली दिस ग्राफ हैज़ सम प्रॉपर्टीज़। ग्राफ की प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी होंगी। मैं स्टार्ट कर देता हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ अ ग्राफ दिस इज़। देयर आर मल्टीपल टाइप्स इन विच देयर इज़ विच कैन बी डिफाइंड ऑफ दिस ग्राफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस ग्राफ is an undirected graph. Undirected graph, UNDIRECTED, undirected. Why do you think is that an undirected graph? पता है आपको undirected क्या होता है? बताएं ज़रा, क्यों है ये undirected?
Yes, you are right. Undirected have edges, but no direction. Directed have edges and also direction. So what you're trying to say is that you can go from arid to Zerent, and also you can go from Zerent to arid. So there is no direction that you can only go from arid to Zerent, and you cannot come back from Zerent to arid. So there is no direction. This is why this is an undirected graph. There is no arrows given in here. Arrow जो होता है, arrow नहीं है इस पूरे ग्राफ में, सिर्फ simple lines edges हैं, which means if you are paying 99 units from CBU to Figueres, then obviously you are paying 99 units from Figueres to CBU as well. So there is no direction dependent on that. So first of all, this is an undirected graph. What other types does this graph hold? कौन कौन सी और types हैं इसके अंदर? This is an undirected graph, yes. What about what else? What other property of a graph does this have? No, it will not become directed. The graph will still stay undirected graph. Undirected graph का मतलब ये है कि उसमें एरोज नहीं गिवन. कंसिडर करें कि अगर मैं एरिड से टिमिसवारा के ऊपर यहाँ पर एरो लगा दूँ इस तरह कि यू कैन गो फ्रॉम एरिड टू टिमिसवारा. अब यहाँ पर एरो लग गया, इसका मतलब है यू कैन गो फ्रॉम एरिड टू टिमिसवारा. अब टिमिसवारा से एरिड नहीं जा सकते आप, क्योंकि दिस इज एन एरो, एंड एरो यही शो करता है कि आप यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते अब आप. So it will still become stay an undirected graph whether you go from arid to Bucharest, or you are from initial state or from goal state, whatever. So my question is still the same. What other types of graph does this graph has? Okay, this is also a weighted graph. weighted graph क्या होता है? Let me remind you. weighted graph is a graph जहाँ पर एक नोड से दूसरे नोड तक जाने की कॉस्ट दी गई हो. आपने ऐसे ग्राफ देखे होंगे जिसमें कॉस्ट नहीं दी गई, 140 नहीं दी गई, सिर्फ आपको बताया कि एरिड से सीपीयू जा सकते हैं आप, कॉस्ट नहीं दी गई, उसको कहते हैं नॉन वेटेड ग्राफ. लेकिन दिस इज अ वेटेड ग्राफ. दिस इज अ वेटेड ग्राफ बिकॉज ऑन एवरी एज देयर इज अ कॉस्ट गिवन. So this is an undirected graph and this is a weighted graph. This is also a cyclic graph as well. cyclic graph ये होता है कि उसमें एक कम से कम एक साइकिल एग्जिस्ट कर रहा हो. साइकिल का मतलब ये है कि आप एक स्टेट से निकलकर दोबारा उसी स्टेट पर आ सकते हैं. जिस तरह लेट्स से कि मैं सीबीयू से निकलता हूँ, तो मेरे कर्सर को आप फॉलो करें, दिस विल बिकम अ साइकिल. सीबीयू से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और फिर दोबारा सीबीयू आ गया मैं. दिस इज अ साइकिल. सो दिस इज अ साइक्लिक ग्राफ एज वेल. कुछ ग्राफ्स ऐसे होते हैं जिसमें साइकिल नहीं होता. जिस तरह लेट्स से कि अगर मैं इस ग्राफ को यहाँ से तोड़ दूँ, तो यू कैन गो फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड नॉट फ्रॉम हेयर टू हेयर अगेन. सो विदाउट डबलिंग ऑन एनी ऑफ द एक नोड को दोबारा विजिट किए बगैर अगर आप एक ही नोड पर दोबारा आ सकते हैं. जिस तरह सीबीयू से मैं निकलता हूँ, तो मैं इस पर आया और फिर इस पर आया. अब देखें, इन दोनों स्टेट्स पर मैं दोबारा नहीं आऊँगा, लेकिन फिर भी मैं दोबारा सीबीयू पर पहुँच जाऊँगा. दिस इज नॉन एज अ साइकिल. तो ये साइक्लिक ग्राफ भी है. तो दिस इज अ साइक्लिक, वेटेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ. ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी. ग्राफ की प्रॉपर्टीज़ को ज़रा दोबारा से जो है वो रिविजिट कर लेना. इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे मुख्तलिफ एल्गोरिदम से. यही वो प्रॉब्लम है जो कि अगले 4-5 एल्गोरिदम्स में हमने सॉल्व करनी है और इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को देखना है. सो अभी की क्लास में यहीं पर फिनिश कर रहा हूँ. थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं अराउंड 10-15 मिनट का, और फिर ज्वाइन करते हैं फॉर द लैब ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे तो देयर कुड बी अ क्विज. टीम्स पर लाजमी इनरोल हो जाएं, सीएमएस पर लाजमी इनरोल हो जाएं. कोई इशू है तो मुझे बताएं. और ग्राफ को ज़रा दोबारा से एक दफ़ा पढ़कर आ जाना, थोड़ी सी उसकी प्रॉपर्टीज़ की. ग्राफ क्या होता है, वेटेड किसे कहते हैं, अनडायरेक्टेड किसे कहते हैं, साइक्लिक किसे कहते हैं, और इन चीज़ों को दोबारा से एक दफ़ा रिपीट करके आ जाना इस लेक्चर को कि इनिशियल स्टेट वगैरह क्या है, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर स्टेट स्पेस की बात करें और मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स को अप्लाई करें. थैंक यू वेरी मच. सी यू आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, लाइक 10-15 मिनट्स का गैप लेके, और फिर दोबारा ज्वाइन करते हैं क्लास को.
for the lab of artificial intelligence. Thank you very much.